آپ تمام ناظرین کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ گڈی ملکاپور فلاور مارکیٹ کے تمام مرچنٹس نے دکانات کی منہدمی کے سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نامپلی MLA جعفر حسین معراج سے خصوصی طور پر دارالسلام میں ملاقات کی اور تمام تر تفصیلات بتائی، جس کے بعد صدر مجلس و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ ناخب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی فلور لیڈر حبیب ملت اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر نامپلی MLA جعفر حسین معراج نے مارکیٹ میں پھولوں کی دکانات کو مسمار کرنے کے سلسلے میں گڈی ملکاپور فلاور مارکیٹ کے ڈائریکٹر محترمہ لکشمی بائی اور ڈپٹی ڈائریکٹر محترمہ پدما سے خصوصی ملاقات کی۔ دکانات کے مالکان نے دکانوں کے لیے نامکمل فائلز جمع کروائی تھی، جس پر MLA نے عہدیداران سے بات چیت کی اور مکمل و باقاعدہ دستاویزات جمع کروائے، جس پر انہوں نے یقین دلایا کہ عہدیداران حکومت کے تمام قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے تمام دکانات الاٹ کریں گے اور اگست کے آخر تک شیڈز وہاں پر تعمیر کر کے دینے کی بھی بات ظاہر کی گئی۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ۔ اور اس کا مقصد ہی پیسے لینے ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ گورنمنٹ کو جو پیسے دیے 26 لاکھ کا سوال کا ہم لوگ پورے کل اچانک آپ کے نوٹس ہونا چالو کر دی 7 نمبر میں نوٹس اس کے اوپر اب اس کو لے کے 24 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہوگا 6 والے تو نکالنے لگا یہ اچانک وہ سب بولڈر لگانے سر اور بولڈر لگانے کے بعد آپ آگے بتائیں اس کے علاوہ جو 62 لوگ بولے اس سے بولے آئیے آپ کا کیا بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے آپ نے بتایا ہے کہ قریب 32 لوگ سب سے پہلے یہاں پہ گڈی ملکاپور مارکیٹ کے اندر اپلائی کیے تھے کہ اپنے کاروبار کرنے کے لیے جو بھی فارمیلٹی ہوتی تھی DD بھرنا تھا یا اپلیکیشن دینا تھا اور جس طریقے سے بھی ہے اس کے اندر 32 لوگ نے جملہ 33 دیے تھے، 33 میں 32 کو سلیکٹ کیا گیا اور 32 لوگوں نے اپنا جو بھی طریقے سے ہوتا ہے اس کے پورے فارم بھر کے آفس میں جمع کروائے۔ یہ مجھے اطلاع دی گئی جس کے اندر 7 لوگ کو باقاعدہ ان کو دکان جس طریقے سے الاٹمنٹ ہوتی ہے اس کے پیپر دیے گئے ہیں۔ 25 لوگ کو ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ حکومت کے طرف آپ کا بھیجایا گیا پیپر وہ بہت جلدی آ جائے گا، یہی آس دلاتے ہوئے حکومتوں نے آپ کو یہی کہا کہ جب تک آپ بیٹھ جائیے آپ کا پیپر آئے گا تو آپ اس طریقے سے بیٹھیں۔ اس کے علاوہ بعد میں
आज से करीब 3 या 4 साल पहले करीब 47 दुकान वाले, उन लोगों को जबकि चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा कि आपका जो भी डीडी है दे दीजिए और आपको यहाँ पर जगह अलॉटमेंट की जाएगी, और उसको एक रेजोल्यूशन लिया गया बोर्ड मीटिंग के अंदर मार्केटिंग की, और वो भी आगे फॉरवर्ड किया गया। इसी तरह आप लोग अपने कारोबार कर रहे थे, मगर कल का जो वाक़या पेश आया उस वाक़े के अंदर अचानक बगैर कोई आपको इत्तला के, बगैर कुछ उसके ये कहा गया कि भाई आप लोग इलीगल है। बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस बारिश के अंदर जेसीबी लाया गया और इमीडिएट डिमोलिशन का काम शुरू किया गया। हमारे बाबा भाई ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके इत्तला दी, उसी के साथ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी इसकी इत्तला पहुँची। जैसे ही इत्तला पहुँची मुझे ये कहा गया कि जाइए जाकर वहाँ पे क्या है देखिए। जैसा सरफराज साहब ने कहा कि ठीक है कि हर आदमी को जब मुश्किल का वक्त रहता, बगैर कोई मसले के, चाहे वो सेहत का मसला हो या कुछ भी हो, सबसे पहले उसकी मदद के लिए जाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच और फिक्र होती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई आए और ठहरे और ये मसले को किस तरीके से हल करे, उसकी पूरी कोशिश करते हैं। जैसा पिछले टाइम फ्रूट मार्केट था, उस मसले का भी जो मेन अहम मुद्दा था, उसमें भी हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भरपूर असम्बली में नुमाइंदगी करी है और फ्रूट मार्केट का मसले को हल करने की कोशिश न सिर्फ की बल्कि पहाड़ी शरीफ पे एक ज़मीन भी अलॉट करवा के उनको दिलाया। आप लोग का जो मसला है, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो भी डिटेल है आप जमा कराइए। इंशाल्लाह आपके जो डायरेक्टर है लक्ष्मीबाई मैडम, मैं उनको बुलवाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, उनको यही कहता हूँ कि भाई अब जो बैठ गए इसको किस तरीके से आप रेगुलराइज करना है, ये आपकी और हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा सरफराज साहब ने कहा कि हमारा कसूर क्या है, हमने वहाँ पर कारोबार की गरज से बैठे, हम हमारी बीवी बच्चों को पालने के लिए बैठे, ना कि किसी से जंग लड़ रहे थे। हम सिर्फ अपना फूलों का कारोबार कर रहे थे। अगर हम जब घुस कर ट्रेसपास करते तो आप जब भी हमारे ऊपर केस बुक कराना था, मगर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने कानून का सहारा लेते हुए कानूनी हैसियत से, जिसको हुकूमत तेलंगाना ने एक चेयरमैन को अपॉइंट किया था, उसी चेयरमैन के ऊपर भरोसा करते हुए हमने अपना डीडी दिया, अपना एप्लीकेशन दिया। उन्होंने आके हमारा को जगह मार्क करके बताया, उस जगह के हिसाब से हमने अपना कारोबार एक सालों से कर रहे थे। मगर अचानक बारिश के अंदर जेसीबी लाकर ये जो काम किया गया, इसको हरगिज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, 100% रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, बात करेंगे, जिस तरीके से भी हो सकता है इंशाअल्लाह दोबारा आपको बिठाने की कोशिश करेंगे। मगर आप लोगों से भी एक दरख्वास्त है, वो ये है कि आप लोग जैसा कि बैठ गए, कम से कम एक मर्तबा अब जिस तरीके से आप लोग आए, इसी तरीके से आके नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने ये तरीके से अलॉटमेंट दिया, तो हम इतने दिन से हुकूमत से नुमाइंदगी करके आपका काम करवा देते थे, असेंबली में बोलते थे, कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो आपको आता था कि आपके साथ क्या हो रहा है। मगर बदकिस्मती इस बात की होती है कि हमारे लोगों की मिजाज में ये कैफियत होती है कि बैठ जाओ, अब क्या होने का है। जब परेशानी आएंगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम याद कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अच्छे में भी याद करिए भाई, अगर परेशानी में भी याद करिए। अगर आपके घर के ऊपर दावत रहती तो भी बुलाइए, कुछ खुदा ना खास्ता ऐसे हालात भी होते तब भी बुलाइए। मगर अफसोस ये होता है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ जैसा आज है, आज हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइट करेंगे, सब चीज़ कराएंगे, मगर जमात से भी जुड़े रहिए। जमात को भी आप आगे आइए, आकर जो बेहतर हो सकता वो काम करने की कोशिश करिए। तो मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर, चूँकि आप लोग जो भी लिस्ट है, डॉक्यूमेंट है, एक तो हमको दिए हैं, इसके अंदर मैं चाहता हूँ जो 7 लोगों का अलॉटमेंट है वो पेपर भी मुझे पहुँचाइए आप। और जो लोग, अगर फर्ज करो आपने डीडी भरी तो तकरीबन लोग तो डीडी की ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखे होंगे आप,
डीडी की ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखे होंगे, उस डीडी की ज़ेरॉक्स कॉपी भी अगर आप कने है तो वो भी हमारे को फराहम करिए, ताकि हमको बात करने में ये सहूलत हो कि इतने साल पहले हमने हमारा जो भी फॉर्मेलिटी है कंप्लीट किया है। क्योंकि अगर आप ये देंगे तो हमको बेहतर रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी तक जो भी हो सका मुमकिन कोशिश पूरी की पूरी कोशिश कराएंगे और इंशाअल्लाह उनको हम यही कहेंगे कि भाई अगर कुछ है तो आप मार्किंग करिए, मार्किंग करके कुछ और नए लोगों को आप अलॉट करना चाहते करिए, मगर पुरानों को डिस्टर्ब मत करिए। यही हमारी सोच रहेगी और यही हमारी फिक्र रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों में से कोई 2-3 जने जिम्मेदार बन जाइए, ताकि हर हमेशा अगर फर्ज करिए सारे के सारों को लेके नुमाइंदगी करना मुश्किल होता है, 2-3 जने जिम्मेदार बन जाएंगे, जहाँ पे भी जाना है हम आप लोगों को लेकर जाएंगे, आपसे मशवरा करेंगे, आपसे बात करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं हुआ तो आज ही डायरेक्टर मैडम को बुला लूँगा या उनको कहीं और या मेरे पास बुलाकर मैं मीटिंग ज़रूर करूँगा। मीटिंग करके इसका कैसा हल निकालना है निकालूंगा और जनाब मूसा साहब को भी मैंने दिया है इंस्ट्रक्शन कि मूसा साहब को भी जो भी वक्तन फाख्ता नज़र रखो, फॉलो अप करो बोल के इंशाअल्लाह ताला मूसा साहब भी करेंगे। हमारे मोहम्मद माजिद हुसैन साहब का भी कल माशाअल्लाह बेहतरीन उनका रोल रहा, उन्होंने आए आपके जज्बात को समझे, आपकी परेशानी को समझे, परेशानी को समझ कर उन्होंने जितनी हो सके वो भी कोशिश की, मूसा साहब भी कोशिश किए। और इतना ज़रूर कहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हर जिम्मेदार हमेशा जब कभी भी कोई परेशान रहता है तो आता है। अब इंशाअल्लाह ताला जो भी रहेगा आप लोग जाइए, मैं इंशाअल्लाह बात करता हूँ। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खां स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।